Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. Today we are going to start chapter number 3, that is numerical descriptive measures. In last two chapters we have discussed a lot about statistics, different properties, some definitions, formation of classes for ungroup and group data. Today we are going to discuss about numerical measures. In this lecture we are going to discuss about in detail we are going to discuss about the mean, then median, mode, and maybe if we have some time then we shall discuss about the relation among the mean, median and the mode. Mean. The mean for ungrouped data is obtained by dividing the sum of all values by the number of values in the data set. Thus the mean for population mean, what we are going to do basically, mu is equal to summation of x over capital N, that x is basically the number of data points and this mu is a symbol that is used for population, and that capital N basically shows the sample of, not sample, I'm sorry, but population size. Similarly, for mean for the sample, if you have some sample from the population and you are interested to find the mean of that data and you are going to show it by x bar, you can show that x mean is equals to x bar, and rest of the formula is same, but here we are just using small n that represents sample data points. Where sum of x, that is basically sigma notation that we have already discussed in chapter number 2, is the sum for all values, where capital N is the population size and small n is the sample size. Mu is the population mean and x bar is the sample mean. Do remember that always in some of the book, most of the book of statistics, mu represents population mean and x bar represents sample mean. In table number 3.1 lists the total cash donations of different companies, and now we are interested to find the average value. To find the average value, what we are going to do basically, we are going to add all these values and going to divide with the total number of elements. Like in this example we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 elements. It means what we are going to do basically, we are going to add all these elements and dividing by 8. इन सब नंबर्स को हम लोग जमा कर लेंगे, जमा करने के बाद टोटल जो हमारे पास काउंटिंग है वो 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ. ये फार्मूला है कि जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं सबको आप ऐड कर दें और उनकी टोटल काउंटिंग जितनी भी है उससे डिवाइड कर दें. तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा. मैंने x1 दैट इज इक्वल टू 319, x2 दैट इज 199, x3 110, x4 63, x5 x6 x7 x8 और इन सबको अगर आप सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1116. So using formula, sum of x is equal to 1116 divided by total number of elements are 8 and we have $139.5 in millions. So this is what we have the average value. And here we have another example. I think you can now solve this example by using the simple formula that we have discussed in the previous slide. You just have to add all that elements and divide it by the total number of elements to have the mean for this data. Like if you are going to sum all these elements, means 53 plus 32, 61 plus 27 plus 39 plus 44 plus 49 plus 57, and you have results that is equals to 362. And how many elements we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 elements are in total. And when we are going to divide this numerical result by 8, we have 45.25, that is basically your average value. Another example, that is example 3.3. In table 3.2 lists the total number of homes lost foreclosure in 7 states during 2010, and the data points are in California. We have 1,73,175, and similarly in other cities we have this these data points. तो बेसिकली अब हम इनमें इंटरेस्टेड हैं कि हम इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे. और एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं? एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को सिंपली इन सारे डेटा पॉइंट्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा.
या हम लोग इन सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड कर देंगे और जितनी भी इनकी काउंटिंग है यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उससे हम डेटा पॉइंट्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि हमें उसकी मीन मिल जाए। लेकिन इसमें ज़रा एक चीज़ आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली ये है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इस बात को कि ये देखें ये जो डेटा पॉइंट है एज कंपेयर टू दीज ऑल अदर डेटा पॉइंट्स वी हैव, तो ये एकदम से एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है बीच में। तो अगर इस तरह से आपके डेटा पॉइंट्स के दरमियान में अचानक से कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसे हम आउटलायर कहते हैं। यानी कि ये जो बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है एकदम से एज कंपेयर टू अदर डेटा पॉइंट्स, तो ये एक आउटलायर का रोल प्ले करेगा। अब जो आपकी मीन वैल्यू है वो कभी कभी बेहतर नहीं होती क्योंकि वो आउटलायर की वजह से अफेक्टेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें, किसी क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो 3 मैचेस में 0 स्कोर करता है और चौथे मैच में वो आके 100 स्कोर कर देता है। तो जब आप उसकी एवरेज फाइंड करेंगे तो उसकी एवरेज आएगी 25, यानी कि उसने हर मैच में 25 रन स्कोर किए होंगे। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 3 मैच में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक मैच में उसने आते ही 100 बना दिया। तो ये आपने देखा कि जैसे ही सिर्फ एक मैच में हाईएस्ट स्कोर करने की वजह से उनको बेनिफिट मिल गया कि उनकी एवरेज पे काफ़ी फर्क पड़ गया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस पिछले 3 मैचेस में इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो मीन है बेसिकली इस बात को यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपके जहन में ये बात हो कि जिस डेटा में आउटलायर्स हो अगर किसी डेटा में, तो उसमें अगर आप एनालिसिस के दौरान उसकी एवरेज वैल्यू मीन फाइंड करके आप कोई कंक्लूजन करने जा रहे हैं तो उस केस में आपका कंक्लूजन बेहतर नहीं होगा स्टैटिस्टिकली, क्योंकि जो आपकी जो मीन है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी आपके आउटलायर की वजह से, जो डेटा में आउटलायर्स हैं। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो फिर हम स्विच कर जाते हैं टुवर्ड्स अ मीडियन। तो मीडियन एक मतलब अल्टरनेटिव वे है। खैर मीडियन तो वैसे डेटा को 2 पीसेज में ब्रेक करता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन को। तो एक फेल्यूर आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा ड्रॉबैक आप मीन का कह सकते हैं कि मीन में ये ड्रॉबैक होता है कि अगर डेटा में आउटलायर्स हैं तो आपका डेटा जो है वो अफेक्ट होता है। आई होप कि आप लोगों को आउटलायर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलें इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे आपको एक नोट मिल जाता है, नोट, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। नोट दैट द नंबर ऑफ फॉर्म्स फोरकास्ट इन कैलिफोर्निया इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू अदर 6 सिटीज। डेफिनेटली ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हैंस इट इज़ एन आउटलायर। अब मैं ये चीज़ अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि आउटलायर क्यों है, आउटलायर का मतलब क्या है। तो इंक्लूजिंग ऑफ द आउटलायर अफेक्ट द मीन वैल्यू, इस पॉइंट को आप नोट कर लें, डायरी में अपनी में कहीं पे लिख लें। जो आप हैंडआउट्स बना रहे हैं तो उनमें ये चीज़ नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलें तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सारे नंबर्स को ऐड किया है, टोटल से डिवाइड कर देना है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मीन विदाउट आउटलायर की है, यानी कि मीन हमने आउटलायर को निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे आउटलायर इंक्लूड करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपकी मीन काफ़ी डिस्टर्ब होगी। अगर हम आउटलायर निकाल के मीन फाइंड करते हैं तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। मीन का आपको पता है कि जितने भी नंबर्स हैं सबको आप ऐड कर देंगे और उनकी जितनी काउंटिंग है आप उससे वो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर विथ आउटलायर आप मीन फाइंड करेंगे तो हमने आउटलायर को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे देखें आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये रिजल्ट्स काफ़ी एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि जो आपकी मीन है वो हमेशा आउटलायर से अफेक्ट होती है। तो ये आपने मीन बनाना भी सीख लिया कि किस तरह से हम डेटा की मीन फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको मीन फाइंड करने का जो मेथड है वो ज़रूर कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरी एक बात फिर से याद रख लें कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो आज का ये जो क्लास है, आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ अनग्रुप डेटा के हवाले से बातें कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मीडियन आपके पास। The median is the value of the middle term in the data set has been ranked in increasing order. Basically median जो है वो आपका मिडल वैल्यू होता है डेटा में, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो मीडियन का मतलब ये है कि आप डेटा पॉइंट्स को, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको 2 पीसेज में ब्रेक कर देते हैं, हाफ ऑन अदर साइड एंड हाफ ऑन अदर साइड। मीडियन फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से आप डेटा को अरेंज करेंगे और उस डेटा में से आप मिडल नंबर जो है वो
फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं टेक्निकली आपके पास। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है या तो वो इवन होंगी या ऑड होंगी। अगर वो तो ऑड नंबर है यानी कि सिर्फ उसमें ऑड नंबर है लाइक 1 3 5 7 काउंटिंग उनकी ऑड है तो ये बहुत आसान है, आप सिर्फ डेटा को अरेंज करेंगे और सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर डेटा पॉइंट्स आपके पास इवन है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर्स हैं, काउंट टोटल ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एलिमेंट्स जितने उस डेटा सेट में है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। उस अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके इवन है तो आप क्या करेंगे, आप लोग जो दो नंबर्स की मीन फाइंड करेंगे, जो सेंट्रल नंबर जो दो होंगे उन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि उनकी मीन फाइंड कर लेंगे, आपको मीडियन मिल जाएगा। आइए अब एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। Example 3.4 that some refers some data that we have some data points over here. The same thing that the same example that we have did for mean, now we are doing median for this data. So first of all we have to arrange all the data points in ascending and descending order. So here we arranged all the data points like this way, smaller number then larger and in the last larger. We have just this median value, and now you have some idea that its median means half of this data point is basically this number. So this median just breaks your data in two parts. One is on the left hand side of that number, actually that is median, and one is on right hand side. Similarly, for example, we have another example, and the number of observations are in data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now we have 12 data points, means the number of observations are even now. So in this case what we are going to do, we will follow the same protocol. First of all we will arrange the data in increasing order, or you can increase in decreasing order, no problem, but it's more better to arrange data in increasing order, and then you have to find the middle number. But here the data points are even, so we are just arranging the data points in ascending order or increasing order, and then we are finding middle numbers. But here we have two middle numbers because the data points are even here. तो इवन में आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हैं। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपस में ऐड करने के बाद इसकी मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला आपको याद है, यानी कि इसको दो डेटा पॉइंट्स हैं तो आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका मीडियन होगा। तो चलें आगे देखते हैं। ये देखें, आपने उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने क्या कर दिया, सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया। या 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग मीन, सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 28.1 I'm sorry. So this is your median basically for even data points. So I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ बुक्स जो हैं वो आपकी मीडियन के लिए एक और फार्मूला यूज करती हैं, यानी कि एक फार्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वो फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ, n+1/2। यहाँ पे आप ये जो होती है ये टूथ ऑब्जर्वेशन है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे टूथ है, n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन। तो आइए एग्जांपल पे चलते हैं, ये फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। कुछ बुक्स या कुछ नोट्स या कुछ वीडियोस में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं लेक्चर्स, तो शायद कहीं पे ये फार्मूला आपको नजर आ जाए। तो जब आपके पास डेटा पॉइंट्स ऑड होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली इसको जो है वो हम लोग थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये किस तरह से आप इसको करेंगे। फार्मूला जो हमारे पास था वो क्या था, n+1/2, लेकिन यहाँ पे टूथ ऑब्जर्वेशन था, ये टू आप यहाँ पे टूथ ऑब्जर्वेशन, ये याद रखिएगा मेरी बात, ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में एक ऐड करेंगे 8, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4th। डेटा को अरेंज करने के बाद आपकी जो 4th ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी
क्या होगी, मीडियन होगी फॉर ऑड डेटा पॉइंट्स। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर किसके लिए, आपकी जो डेटा पॉइंट्स इवन है, सॉरी ऑड जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके लिए। काउंट, अब आप काउंट करें, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और हेयर वी गो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये भी एक फार्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इवन डेटा पॉइंट्स है तो जिस तरह से इसमें था, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12, इसमें अगर कोई फार्मूला हम बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। तो अब इवन नंबर्स के लिए देख लेते हैं फार्मूला आपका क्या होगा। इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए आपका फार्मूला होगा n/2 प्लस n प्लस 2/2, और इसकी मीन करेंगे तो यानी कि डिवाइड बाय 2, होल डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आप कितना, ये भी ऑब्जर्वेशन होगी, रिजल्ट नहीं होगा, टूथ ऑब्जर्वेशन जो भी रिजल्ट आए। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पे अप्लाई करके देख लेते हैं। टोटल पॉइंट्स 12 हैं, यहाँ पे 12 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6, यहाँ पे 12 है प्लस 2 14, और 14 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो 14 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो यहाँ पे मिल जाएगा 7, तो ये आ गया आपका 7, और ये आ जाएगा 13, 13 डिवाइड बाय 2, 13 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो इसका मतलब है 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 6 पॉइंट आई थिंक 5 आएगा। तो 6.5 यानी कि ये 6.5th ऑब्जर्वेशन होगी। 1 2 3 4 5 6 और 6.5 यानी कि यहाँ पे इसके दरमियान होगा ये। या आप ये, अगर ये चीज आपको कंफ्यूजन कर रही है तो इसका मतलब है आपको अब इन दोनों का दरमियान का एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब आप ऐसा कर लें, या इस फार्मूला को थोड़ा सा और मॉडरेट कर लें, थोड़ा सा सिंपल कर लें। आप क्या कर लें, n/2 पे हमारे पास क्या आया था 6, और n प्लस 2/2 पे हमारे पास क्या आया था 7। तो ये दोनों पोजीशंस देखें कौन सी है, ये आपकी 6 पोजीशन है, ये आपकी 7 पोजीशन है। तो अब आप इन दोनों की क्या कर लें, जो एक तरीका ये था, अब इसको यहाँ से हटा दें, दोनों को ऐड करके और मीन फाइंड कर लें। ये जो th ऑब्जर्वेशन मैंने लगाया इसको आप हटा के, अगर आप ये दूसरा तरीका यूज करना चाह रहे हैं तो आप ये दोनों सेम ही है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ये यहाँ से हटा दें, और ये जो ऑब्जर्वेशन वाला था ये आप सिंपल और सिंपल कर देते हैं इस फार्मूला को। ये आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन दोनों पे लगा दें और ये मीन इसके बाद में फाइंड कर लें, तो ये और आसान हो जाएगा। अब मैंने इस ये वाला जो दूसरा आपको अल्टरनेटिव फार्मूला सिखा रहा हूँ कि n/2 यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6, यानी कि छठी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 28 रख लें यहाँ पे 28, और प्लस कर दें इसमें कौन सी पोजीशन, ये वाली, यानी कि 7th पोजीशन, 7th पोजीशन पे ये है। तो 28 पॉइंट यहाँ पे आप करेंगे 2, और यहाँ पे आपके पास ये 2 रह गया, यानी कि मीन फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास ये मीन वैल्यू आ जाएगी। आप फार्मूला में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड बाय 2 उन्होंने करके 28.0 और 28.2 को डिवाइड करके ऐड किया। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए कि आप या तो सिंपल वे से डेटा को अरेंज करके मीडियन फाइंड कर लें, और अगर कहीं को आपको ये वाले फार्मूला नजर आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इस तरह से भी इसकी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। द मीडियन गिव्स द सेंटर ऑफ हिस्टोग्राम, बेसिकली जो मीडियन है वो आपको सेंटर ऑफ हिस्टोग्राम का जो सेंटर है वो देता है, with half the data values on the left of the median and half to the right of the median। ये मैंने वही बात जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि मीडियन जो है वो डेटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, हाफ ऑन द राइट साइड, हाफ ऑन द लेफ्ट साइड।
लेकिन अगर आप इसको इन द हिस्टोग्राम के टर्म्स में देखेंगे, हिस्टोग्राम बनाना आप लोगों ने सीखा है कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। अगर आप हिस्टोग्राम में मीडियन कहीं पे लिखना चाह रहे हैं तो आपको जो मीडियन है बेसिकली आपके हिस्टोग्राम को दो पीसेस में ब्रेक कर देता है, एक ऑन वन साइड और दूसरा दूसरी साइड पे। The advantage of using the median as a measure of central tendency is that it's not influenced by outlier। यानी कि मीडियन को यूज करने का मकसद यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आउटलायर अगर आपके पास डेटा में है तो आउटलायर्स जो है वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करता। द मीडियन इज प्रेफर्ड अबव ओवर द मीन एज अ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर डेटा सेट कंटेन्स आउटलायर। तो ये आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि सर मीडियन क्या होता है, मीडियन हम क्यों यूज करते हैं। तो शायद इस लाइन के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जब आपके डेटा पॉइंट में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स आपको नजर आ रहे हैं, आउटलायर है आपके डेटा पॉइंट में, तो मीन इतना बेहतर एनालिसिस नहीं है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि वो आउटलायर से इन्फ्लुएंस होता है, तो आप फिर मीडियन को यूज कर लें। इट्स बेटर टू यूज मीडियन फॉर द डेटा दैट कंटेन्स आउटलायर्स। उसके बाद केस स्टडी के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये केस स्टडी आप बुक में से अगर स्टडी करना चाहें तो आप बुक खोल के वहां से इसका पूरा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ द लास्ट term of today's discussion, that is mode. And what is mode? Mode is the value that occurs with highest frequency in the data set। वो वैल्यू जो आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा हो, यानी कि कोई नंबर जो है अगर बार बार आपके डेटा पॉइंट में रिपीट हो रहा है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में मोड कहते हैं। लाइक ये देखें, ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे देखें 77 एक बार है, 82 है, 74 है, 81 है, 79 है, 84 है, 74 है और 78 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, वो दो बार रिपीट हो रहा है 74। तो इसका मतलब है जो वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा डेटा में वो आपका मोड होगा। तो अब इस एग्जांपल के लिए मोड जो होगा वो हमारा 74 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मोड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं डेटा में, यानी कि एक ही डेटा में दो मोड्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही मोड को ऑब्जर्व करें, एक से ज्यादा मोड वैल्यूज भी हो सकते हैं, कभी कभी हम इनको मॉडल वैल्यूज भी कह लेते हैं। ये देखें वही डेफिनेशन आ गई कि यूनी मॉडल होता है अगर एक हो, बायो मॉडल होता है अगर दो हो जाएं, और मल्टी मॉडल होता है अगर तीन आपके पास मोड वैल्यूज हों। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देख लें, इसमें अगर आप इसको हम सॉल्व करें तो आप चेक करें, इसमें मेरे ख्याल में 150 है, 750, 980, 490, इस डेटा में कोई मोड वैल्यू है ही नहीं। तो इस तरह से भी डेटा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें मोड वैल्यू नहीं होते, या आप इन सबको ही कह सकते हैं कि ये मोड वैल्यूज हैं क्योंकि ये सारे एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकली हम मोड उस नंबर को कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कह देते हैं कि इसमें मोड नहीं है, नो मोड इस डेटा में नहीं है। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप इसमें सर्च करें 36 आपको एक ही बार नजर आ रहा है, 12 आपको एक बार मिल जाता है, 23 आपको एक बार मिल रहा है, 47 आपको एक बार मिल रहा है, 32 जो है वो आपको एक बार मिल रहा है, 8 जो है वो आपको एक बार मिल रहा है, 12 जो आपको दूसरी बार यहाँ पे मिल गया है। तो 12 तो एक तो डेटा पॉइंट आपका 12 होगा जो दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको भी मोड कह सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे 423 है, 18 है और 23, यहाँ पे भी एक 23 है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है तो एक डेटा पॉइंट यहाँ पे है 23। तो इसका मतलब है इसमें दो मोड वैल्यूज हैं, मॉडल वैल्यूज हैं। ये देखें इसका सोल्यूशन 12 और 23 आर मॉडल वैल्यूज। ये एक और एग्जांपल है, अब ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया कि इसमें तीन है बेसिकली, ऊपर लिखा है, अब आप खुद फाइंड कीजिएगा कि इसमें वो कौन कौन से मॉडल वैल्यूज हैं। सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये तीन मॉडल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये था आज के लेक्चर का डिस्कशन। आई थिंक कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा वापस आएंगे तो आप इस सारे चैप्टर को दोबारा से रिव्यू करके आएंगे बहुत से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।